نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے حوالے سے کچھ نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس میں تذکرہ کیا پچھلی امتوں کا کہ جب بھی کسی امت میں رسول پہنچے اور رسولوں نے اپنی بات اپنی امت کو سمجھائی اور قوم والوں نے انکار کیا، نافرمانیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلے ان کو پکڑا۔ یہ دنیا میں جو پکڑنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ یہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ انسان کے اوپر مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی کسی تکلیف میں آزماتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ارسلنا، ہم نے رسول بھیجے تھے، اِلیٰ أُمَمٍ، پچھلی امتوں میں، بہت سی امتوں میں، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اے میرے آخری پیغمبر رسول، آپ سے پہلے بہت سی امتوں میں ہم نے رسول بھیجے۔ پھر کیا ہوا؟ قوم والوں نے نافرمانیاں کی تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ابتدائی طور پر ہم نے پکڑا ان کو بالبأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں۔ یہ پکڑنا کس لیے تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہ گڑ گڑانا کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیں، عاجزی اختیار کر لیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس نصیحت پر کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ نے پھر خود ہی سوال اٹھایا، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، فلولا کا تعلق تضرعوا کے ساتھ ہے، درمیانی عبارت کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ فلولا، کیوں نہیں، تضرعوا، گڑ گڑائے وہ، کیوں نہیں گڑ گڑائے وہ؟ ہم نے تو دنیا کے اندر ان کو جو سختی دی تھی، دنیا کے اندر ان کو جو تکلیف دی تھی،
इसका मकसद ये था कि वो गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी इख्तियार कर लें। लेकिन फलौला तज़र्रऊ, क्यों नहीं गिड़गिड़ाए वो? इज़ जाअहुम बअसुना, जब आया उन पर बअसुना, हमारा अजाब। जब उन पर हमारा अजाब आया तो क्यों नहीं गिड़गिड़ाए वो? वजह भी आगे खुद पहले सवाल उठाया और फिर उसकी आगे वजह भी बयान फरमाई कि गिड़गिड़ाए क्यों नहीं रुजू किया अल्लाह की ज़ात की तरफ। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, असल वजह यह थी कि वलाकिन, लेकिन, क़सत, सख्त हो गए थे, क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए थे, दिल पत्थर बन गए थे। और दूसरी बात यह थी कि वज़य्यन लहुमुश शैतानु, और ख़ूबसूरत बना दिया था उनके लिए शैतान ने, मा कानू यामलून, जो वो काम करते थे। उल्टे काम, नबियों की नाफरमानियाँ, नबियों की गुस्ताखियाँ, अल्लाह की नाफरमानियाँ, अल्लाह की आयतों का इनकार, अल्लाह के मोजज़ात का इनकार, ये गलत से गलत काम, बुरे से बुरा काम, ये वो करते। और शैतान कहता शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, कमाल कर दिया तूने। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है कुरान पाक में बिलबअसाई, बअसुन से है। बअसुन का माना होता है माशी तंगी। अल्लाह ताला इन दोनों आयतों की सारी बात जिक्र करके और इसके बाद वाला भी सारा मंजर पिछली उम्मतों का अपने नबी को सुना रहे हैं और नबी के ज़रिए हम तक बात पहुंचा रहे हैं। क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक ये बात पहुंचाई जा रही है और उसको वाज़ो नसीहत की जा रही है कि देखो, तुमसे पहले जो सेशन गुजरा है उम्मतों का, उनके अहवाल ये रहे, उनके रिज़ल्ट ये रहे। उन्होंने जो अंबिया से क्लासें ली, उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया और उनका आखिरी रिज़ल्ट ये रहा। रिज़ल्ट तुम्हारे सामने आ चुका, अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम अपना रिज़ल्ट किस तरीके का बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया बअसाई, बअसुन से है। अल्लाह फरमा रहे हैं हम उनको पकड़ते हैं बअसुन, माशी तंगी के ज़रिए से, वज़र्राई, और जिस्मानी तकलीफ़ के ज़रिए भी पकड़ते हैं। कभी किसी के ऊपर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। गुनाहगारों के ऊपर दुनिया में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला सबसे पहले गुनाहगार आदमी के ऊपर पहला इम्तिहान ये डालते हैं कि उसको तंगी देते हैं। जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से तंग पड़ गया, मईशत की वजह से तंग पड़ गया, बीमारी इस कदर लंबी हो गई कि तंग पड़ गया, कोई भी मामला हुआ, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है कि बंदे तू क्या कर रहा है, तो अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू क्यों नहीं करता। अगर तो बंदा अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर लेता है तो शाबाश, अगर रजू नहीं करता तो फिर उसके बाद दूसरा इम्तिहान उसके ऊपर आता है। अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। ये कुरान पाक के फ़ैसले हैं सारे। पिछली इन दोनों आयतों के अंदर जो हमने अभी तिलावत कर ली और तर्जुमा तफसीर पढ़ लिया, इसके अंदर अल्लाह ने हमें क्या बताया कि पहली मेरी पकड़ ये होती है कि मैं उसको माशी तौर पर तंग करता हूँ और जिस्मानी तकलीफ़ देता हूँ। मकसद ये होता है कि रजू कर लें, लेकिन वो रजू नहीं करते। वजह क्या होती है? दिल सख्त हो चुके हैं। वजह क्या होती है? शैतान शाबाश देता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब वो भूल गए मा ज़ुक्किरू बिही, उस नसीहत को जो उनको की गई थी। नसीहत क्या थी? यही अल्लाह की तरफ से नसीहत होती है कि बंदे बाज आ जा। गुनाहगार बंदे को अल्लाह पकड़ के झंझोड़ते हैं, कहाँ खड़ा है। कभी बुखार की सूरत में झंझोड़ा, कभी घर में किसी तकलीफ़ और मुसीबत की सूरत में झंझोड़ा, कभी किसी की वफ़ात पर रंजो गम की सूरत में झंझोड़ा,
कभी हालात दुनिया के झटका देकर उसको झंझोड़ा। ये सारी की सारी मेरी अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए नसीहतें होती हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा नसू, जब ये भूल गए, मा ज़ुक्किरू बिही, उन नसीहतों को जो इनको की गई थी, तो फिर दूसरी आजमाइश जो मुफस्सिरीन इकराम फरमा रहे हैं, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा रहा है फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन, तो हमने खोल दिए उन पर हर किस्म के दरवाजे। दुनिया में रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, इज्जत अफजाई के दरवाजे खोल दिए, हर तरफ नाम ही नाम पैदा कर दिया, हर तरफ ऐशो इशरत के ढेरों के ढेर लगा दिए। आज हम देखते हैं और हम देख के परेशान हो जाते हैं, ये क्या मामला है। ये अल्लाह के बंदे कैसे बंदे हैं कि ना तो ये अल्लाह की तरफ रजू करने वाले, गुनाहों के अंदर डूबे हुए, सारा दिन गुनाहों के अंदर बदमस्त रहते हैं, और इनके ऊपर रिज़्क़ की फरावानी देखो कैसे है, कारोबार देखो कैसे तरक्कियां कर रहा है। अल्लाह का कुरान हमें समझा रहा है, इन लोगों को देखकर कभी भी धोखे में मत आना। अल्लाह फरमाते हैं फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हम हर किस्म के दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं, जाओ दुनिया के अंदर ऐशो इशरत कर लो। हत्ता इज़ा फरिहू, यहाँ तक कि जब वो खुश हो जाते हैं, बिमा ऊतू, उस चीज़ पर जो उनको दिया गया था, कितना खुश होते हैं। अल्लाह के कुरानी अल्फाज ये बात बता रहे हैं कि वो इतना खुश हो जाते हैं कि अपनी खुशी के अंदर मस्त होकर अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल भूल जाते हैं। इतना खुशियों के अंदर मस्त होते हैं कि अल्लाह का नाम लेना भूल जाते हैं, कुरान पढ़ना भूल जाते हैं। अखज़नाहुम बग़ततन, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं जब ये खुशियों के अंदर मस्त होकर पड़े होते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, किसी तरफ से गम की ठंडी गर्म हवा उनको नहीं पहुँचती। अखज़नाहुम बग़ततन, हमने पकड़ लिया उनको अचानक। अल्लाह अल्लाह। फ़इज़ा हुम मुबलिसून, उस वक़्त वो ना उम्मीद होकर रह गए, बस टाइम ख़त्म हो गया अब। और फिर ऐसा पकड़ा कि कभी तो अल्लाह की ज़ात इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम को पकड़ती है। गुज़श्ता कौमों के अहवाल ये थे कि अल्लाह ने उन कौमों को, पूरी कौमों को पकड़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को मेरे अल्लाह ने तूफ़ान के अंदर घेर लिया, पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंच गया, वो भी महफूज न रह सकी। कौम आद का मंजर भी देख लीजिए, जिसको शदीद तूफान ने 8 दिन तक मुसलसल घेरे में रखा, उनका कोई फर्द बाकी नहीं बचा। कौम समूद के अहवाल भी देख लीजिए, जिनको मेरे अल्लाह ने एक खौफनाक आवाज़ के ज़रिए तबाह बर्बाद करके रख दिया। कौम लूत के अहवाल भी देख लीजिए, जिनको मेरे अल्लाह ने ज़मीन से उठाया, वो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आसमानों तक ले जाकर उस बस्ती को उलट कर फेंक दिया। जहाँ वो बस्ती मौजूद थी, वहाँ सारे का सारा पानी ही पानी है। आज भी उर्दन का इलाका है, ऐसा पानी ख़तरनाक किस्म का है, उस पानी के अंदर कोई जानवर चला जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता, उसके अंदर मेंढक और मछली चली जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकती। इसलिए उस पानी का नाम बहरे मैयत करार दे दिया गया। और कभी मेरा अल्लाह तन्हा तन्हा पकड़ता है, इनफरादी तौर पर सजा देता है। ये तो पिछली उम्मतों के अहवाल थे।
اور اس उम्मत को भी मेरा अल्लाह पकड़ता है। ऐसे अजाब तो नहीं आते जैसे पिछली उम्मतों पर आए थे। ये मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है। मेरे आका ने दुआ फरमाई थी, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को दुनिया में ना पकड़ना, आखिरत में पकड़ लेना। अल्लाह ने दुनिया में छूट दे दी, लेकिन अल्लाह कभी यहाँ भी दिखाता है, कभी तूफान आ गया, कभी जलजला आ गया, अल्लाह यहाँ भी दिखाता है और इबरत के लिए सारी कौमों को बताता है अल्लाह कि जैसे पिछली कौमों को मैं अल्लाह ने हलाक कर दिया, तुम भी मुझसे दूर नहीं हो, बाज आ जाओ। हम तो सिर्फ क्या देखते हैं, दुनिया में माल और दौलत देखकर धोखे में पड़ जाते हैं। माल और दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन सुनिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ये देखो कि किसी शख्स पर नियामत और दौलत बरस रही है, सुभान अल्लाह, क्या लफ्ज़ फरमाया, बरस रही है, आसमान से पानी बरसता है और उस बंदे पर दौलत बरस रही है, ऐसे बरस रही जिस तरह पानी बरसता है, हालांकि वो बंदा अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर जमा हुआ है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों समझ लो कि अल्लाह उसकी ऐशो इशरत पर उसको सख्त अजाब में पकड़ने के लिए तैयार हो कर रहे हैं। ये निशानी है, ये अलामत है, गुनाहों के अंदर भी है और फुल याशियों में है, और फिर दुनिया बरस रही है उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने छूट दी है, अल्लाह किसी वक्त भी इसको अचानक पकड़ सकते हैं। ये इम्तिहान है इसके लिए। और वो बंदा जिसको अल्लाह ने दुनिया दी, लेकिन उस दुनिया में उसने अपने अल्लाह को नहीं भुलाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भुलाया, ये बंदा कामयाब, ये बंदा कामयाब है। फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम को हलाक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर खयानत के दरवाजे खोल देते हैं। वो खयानत ही खयानत करता है, कभी हकूकुल इबाद में खयानत करता है तो कभी हुकूकुल्लाह में खयानत करता है। नमाज पढ़ेगा तो उसमें खयानत, रोज़े में खयानत, हज में खयानत, ज़कात में खयानत, सदका व खैरात में खयानत, अगर हकूकुल इबाद का मामला आता है तो वहाँ भी खयानत। जो बंदा ऐसी डंडियां मार रहा है, हर एक के साथ धोखा कर रहा है, समझ लो अल्लाह इसको हलाक करना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू, फ़क़ुतिया फिर कट गई, दाबिरु जड़, अल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू जालिम कौम की, उन जालिमों की अल्लाह ने जड़ ही काट के रख दी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। जब कोई बुरा आदमी दुनिया से जाता है तो दुनिया की अल्लाह की सारी मखलूकात अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि ये बंदा ज़मीन पर अल्लाह की तरफ से बोझ था। जो बंदा गुनाह करता है ना, वो सिर्फ अपनी ज़ात पर जुल्म नहीं कर रहा, दुनिया के ऊपर बसने वाली सारी मखलूकात के लिए वो बंदा जालिम है, सबके लिए नुकसान का ज़रिया है, सबके लिए तंगी का ज़रिया है, सबके लिए परेशान करने का ज़रिया है गुनाहगार बंदा। इसलिए तो फरमाया, गुनाहगार बंदा, बुरा बंदा दुनिया से चला गया। अल्लाह की सारी मखलूकात अल्लाह का शुक्र अदा करती है, यहाँ तक कि पत्थर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दरख्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब जानवर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता है तो ज़मीन और आसमान रोते हैं,
ज़मीन व आसमान रोते हैं अल्लाह के दरबार में। ये है फ़र्क नेकोकार के अंदर और बदकार के अंदर, गुनाहगार के अंदर और अल्लाह के फरमाबरदार के अंदर। क़ुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, अल्लाह के समझाने का अंदाज़ देखिए। क़ुल, फरमा दीजिए इन मुशरिकीन को, अरअयतुम, देखो तो सही, इन अख़ज़ल्लाहु, अगर ले ले अल्लाह, समअकुम, तुम्हारे कान, व अबसारकुम, और तुम्हारी आँखें, व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, और मोहर कर दे अल्लाह तुम्हारे दिलों पर, मिन इलाहिन गैरुल्लाह, मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन माबूद है अल्लाह के अलावा, यअतीकुम बि, जो तुम्हें ये सारी चीज़ें वापस ला कर दे दे। अल्लाह ने कान दिए, अल्लाह ने आँखें दी, अल्लाह ने दिल दिया, अल्लाह ये तीनों चीज़ें अगर वापस ले ले, अल्लाह का सवाल है मुशरिक ये तो बता, मन इलाहुन गैरुल्लाह यअतीकुम बि, कौन माबूद है जिनको पूजते हो अल्लाह के मुकाबले के अंदर? कोई है जो तुम्हें आंखें वापस ला कर दे दे? कोई है जो तुम्हें कान वापस ला कर दे दे? कोई है जो तुम्हें दिल ला कर वापस दे दे? अल्लाह ने इन तीन चीज़ों का मेन तज़किरा यहाँ पर फरमाया। उसकी वजह क्या है? ये तीन चीज़ें अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इंसान की सारी बॉडी अल्लाह की नेमत है, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी नेमतें हैं वो ये तीन चीज़ें हैं। क़यामत के दिन इन तीनों चीज़ों के बारे में अल्लाह के दरबार में सवाल किया जाएगा। कानों के बारे में भी सवाल होगा कि हमने कान दिए थे नेकी की बात सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए, अपने नबी का फरमान सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, तुमने कान कहाँ इस्तेमाल किए? क्या गाने सुनते रहे, फोश ड्रामे सुनते रहे? आंखों के मुताल्लिक भी सवाल होगा, अल्लाह की ज़ात पूछेगी, हमने आंखें तुम्हें दी थी दुनिया के मंजर देखने के लिए, कुरान देखने के लिए, अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखने के लिए, क्या तुमने यही देखा या गैर महरम को देखा? क्या तुमने यही नेकी के काम किए या फिल्में और ड्रामे देखे? ये सवाल होगा क़यामत के दिन। दिल के बारे में भी सवाल होगा, इस दिल के अंदर क्या सोचो विचार होती रही, किसको जगह दी, अल्लाह को दी या गैरुल्लाह को दी? उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफून, उन्जुर, देखो, कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति, अल्लाह वादो नसीहत कर रहे हैं ना, और किस किस अंदाज से कर रहे हैं इसका तज़किरा अल्लाह फरमा रहे हैं। उन्जुर, देखो तो सही, कैफ़ा, कैसे, नुसर्रिफु, हम तरह तरह से अल आयाति बयान कर रहे हैं, तरह तरह से हम निशानियां सामने रख रहे हैं, तरह तरह से बयान हम आपके सामने कर रहे हैं। सुम्मा हुम यस्दिफून, फिर भी ये लोग बेरुखी कर रहे हैं और एराज कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, देखो तो सही, हम किस किस अंदाज से तुम्हें समझा रहे हैं, किस किस अंदाज से तुम्हारे सामने, कभी आखरत के मंजर सामने रख के तुम्हें समझा रहे हैं, कभी कब्र के मनाजिर तुम्हारे सामने रख के समझा रहे हैं, कभी पिछली उम्मतों के वाक़यात सुनाकर तुम्हें समझा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी सुम्मा हम यस्दिफून, फिर भी वो लोग बेरुखी कर रहे हैं, फिर भी एराज कर रहे हैं। कुल अरअयतकुम, फरमा दीजिए, देखो तुम, इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन, अगर आए तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब, बग़ततन, अचानक, औ जहरतन, या जाहिर होकर, हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, कौन हलाक होगा? नहीं हलाक होगे मगर जालिम कौम। अगर अल्लाह का अजाब अचानक आ गया तो जालिम लोग हलाक कर दिए जाएंगे। पिछली उम्मतों में यही होता रहा। अल्लाह ने जब पकड़ा तो अल्लाह ने अपने नेक लोगों को वहाँ से निकाल लिया और जालिमों को पकड़ के हलाक कर दिया। और कभी अल्लाह ताला की तरतीब यह भी हो जाती है कि जालिमों के साथ बग़ैर जालिम वाले वो भी अल्लाह के उस इज़ाब के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। उसकी कई वजूहात हैं। और वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, आखिरी आयात के अंदर अल्लाह ने जवाब दिया जो मक्के वाले अपनी मनमानी के मौजज़े मांग रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने नबी को मौजज़े बताने के लिए, मौजज़े दिखाने के लिए नहीं भेजा,
वमा नुरसिलुल मुरसलीना, नहीं हमने भेजा रसूलों को इल्ला मुबश्शिरीना, मगर खुशखबरी सुनाने के लिए, व मुनज़िरीना, और डराने के लिए। फ़मन आमना, जो भी ईमान ले आया, व अस्लहा, और उसने इस्लाह कर ली, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके ऊपर कोई खौफ भी नहीं, वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन भी नहीं, ना कोई खौफ ना कोई गम। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने जुटला दिया हमारी आयतों को, यमस्सुहुमुल अज़ाब, उनको पहुँचेगा अज़ाब, बिमा कानू यफ़सुकून, उनकी नाफरमानी की वजह से। ये दुनिया के अंदर जितनी देर हम हैं, ये दुनिया आखरत के लिए शोरूम है। यहाँ अल्लाह ताला रहमत भी दिखा रहा है, यहाँ अल्लाह ताला अज़ाब भी दिखा रहा है, और अल्लाह ताला हमें समझा रहा है, रहमत देखो तो ये जन्नत की हवाएं हैं, अज़ाब देखो तो ये जहन्नम की भाप है। समझ जाओ दुनिया वालों, ये अल्लाह का शोरूम है दुनिया। यहाँ अल्लाह, जिस तरह शोरूम, दुकानों वाले क्या करते हैं, शोरूम के अंदर चंद सैंपल रखे होते हैं, पीछे स्टोरों के अंदर सारा माल होता है। इसी तरह अल्लाह ने दो स्टोर आखरत के बनाए, एक का नाम जन्नत रख दिया, एक का नाम जहन्नम रख दिया, और दुनिया के अंदर इन दोनों की कुछ चीज़ें जन्नत की रख दी, कुछ चीज़ें जहन्नम की रख दी। राहत, आराम, सुकून जन्नत वाला यहाँ रख दिया, और अज़ाब और बेसुकूनी जहन्नम वाली रख दी। दुनिया को बता दिया, अब तुम्हारी मर्ज़ी, इस शोरूम से जन्नत का माल ख़रीदना चाहो वो ख़रीद लो, और अगर जहन्नम का माल ख़रीदना चाहो तो वो ख़रीद लो। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।